So, good evening. We'll start new chapter today. That is thermodynamics. Thermodynamics. So here we have thermo and dynamics. You know what do you mean by thermo? Thermo means related to heat and related to temperature. Dynamics means flow. Dynamics means flow. So here in this chapter we will discuss about flow of heat, how to heat flow, what is the phenomena based on the heat flow, what is the thermal properties of matter that we include in this one also, what is the effect of temperature when heat given to the system or heat absorbed from the system, what is the work done by the heat, what is the change in internal energy, what is internal energy, what is the pressure, effect of pressure on temperature, and everything related that we will discuss in thermodynamics. Okay, so first thing here that we will discuss about thermal equilibrium. Thermal equilibrium. What do you mean by thermal equilibrium? Thermal equilibrium. You know what is the thermal equilibrium? Two or more than two bodies are called in thermal equilibrium if their temperature are same. If their temperature are same, so here we will say two or more than two body. Two or more than two body are called in thermal equilibrium. In thermal equilibrium. If their temperature are सेम. दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगी बेटा? जब दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा. अरविंद ऐसा है, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है. तेरे को कुलदीप ने बोला ये दोनों बॉडी किस में है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ऐसा इसने तेरे को बोला, तो तू कुलदीप को क्या जवाब देगा? कि जितना टेम्परेचर इसका है उतना ही टेम्परेचर इसका है. तो जैसे ही कुलदीप बोलेगा ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, देन अरविंद विल राइट टी ए इक्वल टू. गॉट माई पॉइंट? समझ में आ गई चीज? दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उनका टेम्परेचर सेम रहेगा. दैट मीन्स दे विल इन थर्मल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट थिंग, यू नो व्हाट इज द chemical equilibrium? Chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? Chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? सुना नाम? केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. In reversible process or reversible reaction, rate of forward reaction, rate of formation of the product equal to rate of formation of the reactant again from the product. So rate of forward reaction equal to rate of backward or reverse reaction. Reverse reaction.
फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट या रिवर्स रिएक्शन रेट दोनों क्या है, सेम है, देन सिस्टम इज कॉल्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम. सिस्टम इज कॉल्ड इन केमिकल equilibrium. One more equilibrium that are, you know, one more equilibrium exists, that is mechanical equilibrium. You know what is the mechanical equilibrium? What is mechanical equilibrium? Mechanical equilibrium. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? If net force and net torque on any system is zero, net force and net torque on any system is zero, that means F net equal to zero and tau net equal to zero, then this system is in mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium. Object move with a constant speed, that is in mechanical equilibrium or not. नेट एक्सीलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है, रोटेट भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नेट टॉर्क आल्सो जीरो. अब ये तीनों क्यों पढ़े? वी विल डिस्कस अबाउट नाउ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हेन system will in thermodynamic equilibrium, you know, when a system will be in thermodynamic equilibrium. So that is very important here. Thermodynamics equilibrium. Thermodynamic equilibrium. You know what is thermodynamic equilibrium? पता है क्या होता है thermodynamic equilibrium? A system is called in thermodynamic equilibrium if that system in thermal equilibrium, that in chemical equilibrium and that in mechanical equilibrium. अगर एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा. तो ए सिस्टम is in thermodynamic equilibrium if it in बोलिए, if it in thermal equilibrium, chemical equilibrium and mechanical equilibrium. समझ में आ गई बात या नहीं आई बताओ? एक सिस्टम कब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा? जब वो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम पजेज कर रहा है. कौन कौन से? थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल. Then it will in thermodynamic equilibrium. Got my point? Now we have next point of this part. You know what is the thermodynamic process? Thermodynamic process या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है पहले ये देखते हैं. थर्मोडायनेमिक सिस्टम. What is thermodynamic system? You know what is thermodynamic system? क्या है thermodynamic system? क्या thermodynamic system? A thermodynamic system which contains working substance, source of heat, sink of heat, that all thing.
वर्किंग सब्सटेंस भी होगा उसके अंदर. सो ए इज सिस्टम इज क्या होगा? A thermodynamic system where all thermodynamic process occurs. All thermodynamic process occurs. थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे. वहां पे मेन क्या क्या पार्ट होंगे? वर्किंग सब्सटेंस होगा, सोर्स ऑफ हीट होगा, सिंक ऑफ हीट होगा, पिस्टन्स होंगे जो वर्किंग करने के लिए पिस्टन होंगे नहीं होंगे. So that all known as thermodynamic system. So thermodynamic system is where thermodynamic process occurs. क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर्स होते हैं. नाउ यू नो व्हाट इज द सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स ऑल अदर थिंग एक्सेप्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सिस्टम को छोड़ के बाकी सभी चारों ओर की जितनी भी चीजें हैं दैट आर सराउंडिंग्स. दैट आर सराउंडिंग्स. all things except thermodynamic system. Thermodynamic system. सभी चीजें थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़ के सराउंडिंग्स होगा. नाउ वर्किंग सब्सटेंस it is the gases or mixture of gases which expand or compress to perform work. So it is gases or mixture of gases which expand or compress to perform work. वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या होगा? वर्क करेगा नहीं करेगा? करेगा. एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक. यू नो व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द सिंक? सोर्स which give heat to the system, which provide heat to system at constant temperature. आइडियल सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स जो लगातार हीट अप्लाई करता रहे, उसके टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आए. तो ऐसा सिस्टम जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी? हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट. कितनी होगी? कितनी भी हीट ले लो उससे ताप में कोई कमी नहीं. कितना भी मार दो गुस्सा उतना का उतना. उसको हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं? उसको इनफाइनाइट. सन है. ठीक है. तो मीन्स हीट कैपेसिटी ऑफ सोर्स इज कितनी होगी? इनफाइनाइट. कितनी होगी? अब यहां पे एक आता है अपना सिंक. क्या होता है सिंक?
सिंक क्या करता है? विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम, विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सिस्टम। जो सिस्टम से हीट क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इसका भी टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसकी भी हीट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। कितनी भी हीट दे दो, कितनी भी हीट दे दो, ये ठंडा का ठंडा रहेगा। कितना भी चिल्ला दो, कितना भी गुस्सा कर दो, फिर भी रोज पूछूंगा जाऊं क्या। ठीक है? दैट इज दैट इज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट हीट। दैट मीन्स हीट कैपेसिटी इसकी कितनी बेटा? हीट कैपेसिटी ऑफ सिंक, कैपेसिटी ऑफ सिंक मस्ट बी क्या होनी चाहिए बेटा? इनफाइनाइट, मस्ट बी इनफाइनाइट। ठीक है कुलदीप? तो ये सारे पार्ट किसके हो गए? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब सिस्टम को छोड़ के बाकी सभी पार्ट क्या है? सराउंडिंग में आता है। समझ में आई बात? नाउ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। नेक्स्ट थिंग इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? यू नो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कैन यू टेल? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। वेरिएबल रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। वेरिएबल required to represent thermodynamic process, thermodynamic process, that is thermodynamic variable. We have three thermodynamic variable: P, V and T. What is P? P stand for pressure, V stand for volume, and T stand for temperature. T stand for temperature. Pressure, volume and temperature. These three are thermodynamic variable. These three are thermodynamic variable. Next is indicator diagrams. Indicator diagrams. What is indicator diagram? क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम? कैन यू टेल? Graphical representation of thermodynamic process with thermodynamic variable. Graphical representation of thermodynamic process with thermodynamic variable. With thermodynamic variable is called
इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। जो इंडिकेट करते हैं किसको? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। किसको इंडिकेट करते हैं कुलदीप? थर्मोडायनेमिक इंडिकेटर प्रोसेस। बहुत अच्छा। अब सुनो, जैसे अपने पास वेरिएबल का यूज करना है, जैसे मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया आपके सामने, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया कुलदीप, ऐसा। ये P था, यहाँ पे V है। इसको देख के तुझे क्या लग रहा है? यहां पे अगर मैं एरो बना देता हूं, ये एरो क्या शो कर रहा है? प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंशन। क्या हो रहा है ये? एक्सपेंशन। ठीक है। अगर ऐसा है, यहां पे मैं V बनाता हूं, यहां पे मैं T बनाता हूं, यहां पे V बनाया, एक पे क्या बनाया? T, और कुछ ऐसा प्रोसेस दिखा दिया। ये क्या है? इसमें आप देख रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर जो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। क्या बोलते हैं? और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो, ठीक बात है। तो इंडिकेटर डायग्राम समझ में आ गई क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। ठीक है। आंखों आंखों में क्या होता है? इंडिकेशन होता है कि चलो चलते हैं बाहर। कहाँ? वो बाद में देखेंगे, पहले बाहर तो निकले। उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन दे रहा तुम भी तो? जा, समझ में आ गया इंडिकेटर डायग्राम? अब यहां पे कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है, उसके अंदर तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, may be heat absorbed by surrounding or may be heat released to the surrounding. ठीक है। सेकेंडली, इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वर्किंग सब्सटेंस, वर्क डन कितना होगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। These three are very important in any thermodynamic process. So to represent any thermodynamic system process, we require these three things. Three important part of any thermodynamic system, any thermodynamic process. Thermodynamic प्रोसेस, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेटा, उसके तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास होती है। कितनी चीजें होती है? तीन चीजें होती है। दैट इज हीट फ्रॉम, हीट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, एक चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू से। किसे लिखते हैं बेटा? डेल्टा क्यू से। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है? इफ सिस्टम गेन हीट, गेन हीट का मतलब एब्जॉर्ब है कि नहीं है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इफ सिस्टम, इफ सिस्टम लूज हीट, तो क्या होगा? डेल्टा क्यू नेगेटिव। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है, हीट लोगे तो पॉजिटिव, हीट दोगे। समझ में आ गई बात? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, क्या? हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग कितना ट्रांसफर हो रहा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। दूसरा पार्ट क्या बेटा इसका इंपॉर्टेंट? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल
energy. So what is internal energy? For any thermodynamic system, an average energy possessed by the working substance molecule. क्योंकि गैस यूज करते हैं, गैस के अंदर सारे मॉलिक्यूल कौन सी एनर्जी पोजेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी. कौन सी करते हैं? काइनेटिक एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by molecules of working substance. जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी. दिस एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. किसकी फंक्शन है बेटा? ये टेम्परेचर. मीन्स चेंज इन टेम्परेचर देन इंटरनल एनर्जी चेंज, अदरवाइज इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. It is function of temperature. That means it depend on initial and final temperature only. Initial and it will not depend on the path by which thermodynamic process occurs. ये depend नहीं करेगा किस path से हो रहा था, ऐसे path से हो, ऐसे path से हो, चाहे किसी path से हो, इसके ऊपर ये process depend नहीं करेगा. ये केवल और केवल depend करेगा कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या है. क्या डिपेंड करेगा इस पे? इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर. मीन्स इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन. क्या है ये? स्टेट फंक्शन, नॉट ए पाथ फंक्शन. क्या लिखोगे? नॉट ए पाथ फंक्शन. क्यों है स्टेट फंक्शन? क्यों है स्टेट फंक्शन? क्यों है? रीजन बताया था अभी मैंने. Because it's only depend on initial and final state, not on path. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है. दूसरा क्या बोला मैंने? इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो जो इंटरनल एनर्जी नॉर्मल लिखते हैं ना, ये लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, या डी यू इक्वल लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? डी यू इक्वल टू. अब यहाँ पे देखो, डी यू इक्वल टू बनेगा एन सी वी डी टी. या एक्चुअली बताओ मुझे, अब अगर मैं बोल दूं कि डी टी इक्वल टू 0, तो डी यू इक्वल टू, अगर सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज. अगर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू नेगेटिव. समझ में आ गई बात? दूसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दूसरा इंटरनल एनर्जी. व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वर्क. Work is also very important part. You know, let it is a piston, it is any piston area that is A, and here gases are filled. This is cylinder in which movable piston are fixed. ये movable piston है. कौन सा piston है बेटा? movable piston है. अब इस movable piston के अंदर हम मूव करवा सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते नहीं कर सकते बताओ? तो जैसे ही अंदर बाहर करेंगे, कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम में क्या होगा? चेंज होगा. अगर मैंने इसको dx से यहां पे डिस्प्लेस किया, मान लो अंदर की साइड, किससे डिस्प्लेस किया? dx. तो व्हाट इज द वर्क डन? dw इक्वल टू एफ dx. एफ इक्वल टू क्या होगा? इसके अंदर गैसेज प्रेशर लगाएगी नहीं लगाएगी? तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया. तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? pa इंटू dx क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम. तो dw इक्वल टू क्या होगा?
पी डीवी। अगर आपको डब्ल्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। यह होता है फॉर्मूला किसका, वर्क डन का, डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। आप चाहो तो वी इनिशियल टू वी फाइनल भी लिख सकते हो, वी इनिशियल टू वी फाइनल। इसका मतलब जो है वर्क डन दैट इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। किसका फंक्शन है, वॉल्यूम। सो वर्क डन इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वर्क किसका फंक्शन है बेटा, वॉल्यूम का। किसका फंक्शन है, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो देन वर्क डन इज डेल्टा वी जीरो, देन डेल्टा डब्ल्यू इज आल्सो जीरो। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ने से वर्क पॉजिटिव। वॉल्यूम घटेगा डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। वॉल्यूम कम वर्क नेगेटिव, वॉल्यूम ज्यादा वर्क पॉजिटिव। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिपेंड ऑन पाथ, नॉट ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट। किस पे डिपेंड करेगा, किस पाथ से हो रहा है। वर्क डन पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। इट इज ए पाथ फंक्शन, नोट डाल के लिखना, इट इज ए पाथ फंक्शन। क्या फंक्शन है ये, पाथ फंक्शन। बिकॉज क्या रीजन है इसका, इट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन पाथ ऑफ प्रोसेस, पाथ ऑफ प्रोसेस। अभी दिखाता हूं कैसे करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे एक मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लिया, पी और वी का ग्राफ है, पी और वी का ग्राफ। अब यहां पे एक प्रोसेस मान लीजिए ऐसा हुआ, एक प्रोसेस ऐसा हुआ, दूसरा प्रोसेस ऐसा हुआ। दोनों प्रोसेस में फर्क दिख रहा है आपको, एक अलग पाथ से हो रहा है, दूसरा अलग पाथ से हो रहा है। दोनों पाथ में वर्क डन अलग अलग है, बट दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है बेटा, दोनों में सेम है। फिर भी दोनों वर्क क्या है, अलग। क्योंकि जो वर्क होता है दैट वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। W इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ मतलब समझ गए, क्योंकि कारण क्या हुआ, यहां P और dV आ रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। तो इंटीग्रेशन ऑफ P dV किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है पीवी ग्राफ के अंडर। तो यहां पे देखो, आप जब देखोगे इसके अंडर जो एरिया आ रहा, नीचे वाले के अंडर एरिया, ये तो केवल इतना ही एरिया आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे वर्क अलग हुआ, कम वर्क हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। यही दूसरे पार्ट में आप देखोगे तो इसमें ये एक्स्ट्रा एरिया क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहां पे ये जो वर्क लेंगे ये वर्क ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं इस W2 की, ये प्रोसेस 2 मान लेते हैं, ये प्रोसेस क्या मान लेते हैं 1, तो W2 इज मोर देन W1। तो ये प्रोसेस किस पे डिपेंड करा, पाथ पे डिपेंड किया कि नहीं किया। अगर ये इंटरनल एनर्जी का पूछता है इसमें, तो यहां पे जितनी इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में चेंज हो रही है उतनी किस में चेंज होती है, दूसरे वाले प्रोसेस में चेंज होती है। क्योंकि इनिशियल स्टेट टेम्परेचर क्या दोनों में, चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम होगा, टेम्परेचर क्या होगा दोनों में सेम चेंज होगा। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी है दैट इज दी स्टेट फंक्शन, बट वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज एनर्जी, heat energy transfer with system to surroundings. If system absorb heat, delta Q positive. If system loss heat, delta Q negative. Second thing, internal energy, that is a function of temperature, that is a state function. If temperature increase, delta U increase. If temperature decrease, delta U decrease. That means negative. Third very important thing, that is the work done. Any system, work will done by expansion or compression. When expand, work positive, volume increase. When compress, volume decrease, work negative. And area under PV graph equal to the work done. Area under PV graph equal to work. Work done by system will depend on path. Work done by system will depend on path, by which path process occurs. That means it is a path function, not a state function. I think up to here everything is clear to you. So that's all for this lecture. Next topic we will discuss in next class. Thank you.